Welcome to my YouTube channel Spread Knowledge. If you find the content is relevant and helpful to you, please subscribe this, press the bell icon. So we start our video. We are going to discuss 10 most relevant question answers related to the teaching aptitude and which are asked in various previous examinations, and this is part 10 of the videos which we are discussing teaching aptitude. So these can be helpful to you in various examinations, and if you like the video, please subscribe and press the bell icon. So question number 1 is the test on the basis of which a teacher takes decision about the students is known as A. Performance test, B. Institutional test, C. Revision test, D. Instructional test. So most correct option is performance test, on the basis of which a teacher takes decision about the student. That is performance test, option A. Second question is the introduction of career courses in schools and colleges aims at A. Developing the ability to make the intelligent choice of jobs, B. Providing professional knowledge to students, C. Increasing GK in students, D. All of the above. So correct option is providing professional knowledge to students. These are the aims, these are the main aim of the career courses in schools and colleges. Introduction of career courses in schools and colleges, providing professional knowledge to students. Third question is which one is not the objective of special education? To pursue those curricular matters that strategically determine effective living for specific type of handicapped children. B is to develop motivational patterns in the handicapped that will produce achievements. C is to develop realistic self-concept in handicapped children. All of these. So I can tell you that the objective of special education is to support and care the especially in able children and to support them to grow to their true potential in a sportive environment. तो पहले ऑप्शन में बात कही गई है कि करिकुलर मैटर्स to pursue those curricular matters that strategically determine effective learning for specific type of handicapped children. स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए इफेक्टिव लर्निंग हो, तो करिकुलर मैटर वो ही नहीं उठाने उन्होंने, जितना वो हो सकते हैं सारे के सारे एस्पेक्ट उठाने होते हैं. तो पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. टू डेवलप मोटिवेशनल पैटर्न इन हैंडीकैप दैट विल प्रोड्यूस अचीवमेंट. मोटिवेशनल पैटर्न उनको करने होते हैं, नहीं उनकी केयर और उनकी सपोर्टिव ग्रोथ के लिए करना होता है. मोटिवेशनल पैटर्न में इसमें मतलब ये भी पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है. टू डेवलप रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट इन हैंडीकैप चिल्ड्रन. रियलिस्टिक कंसेप्ट नहीं, उनको जितना फुल पोटेंशियल है, चाहे वो रियलिस्टिक हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे जिस भी लेवल का वो कंसेप्ट हो, जिस भी डायमेंशन में उनकी ग्रोथ हो, किसी भी डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन में, साइकोमोटर में या किसी अफेक्टिव डोमेन में, उनकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पूरी तरह से हो, ये इसका मेन एम होता है. ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशल एजुकेशन का. तो तीनों ही इनमें गलत होंगे, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन में सारे ही आएंगे ABC, ऑल ऑफ दीज. डी इसका ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन योर इंस्टीट्यूशन अ डिबेट टेस्ट वुड बी हेल्ड शॉर्टली, देन हाउ वुड यू सपोर्ट योर स्टूडेंट? A. By writing the debate. B. You will tell students how to write a debate. C. You will tell students where to consult for literature. D. None of this. कि आपके इंस्टीट्यूशन में डिबेट टेस्ट होने जा रहा है जल्दी से, मतलब जल्दी आपके इंस्टीट्यूशन में एक डिबेट होगा बच्चों के बीच में, तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे सपोर्ट करोगे? बाय राइटिंग द डिबेट, या उनको बताएंगे कि कैसे राइट करना है डिबेट, या फिर आप बोलेंगे कि लिटरेचर जहाँ से वो उनको वो लिटरेचर बताएंगे जहाँ से वो उसको तैयार कर सकते हैं. तो इसमें जो है सी सबसे अप्रोप्रिएट होगा. आप वो लिटरेचर के लिए कंसल्ट करने के लिए आप बताएंगे कि जहाँ से वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. सी ऑप्शन होगा. फिफ्थ क्वेश्चन इज वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास, देन अ टीचर शुड A. कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन गो. B. नॉट बॉदर ऑफ वट इज हैपनिंग इन द क्लास. C. पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस. D. ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें A जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि कीप क्वाइट फॉर अ वाइल, पॉज देना है ताकि वो अटेंटिव हो जाए और केयरफुल हो जाए कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो. एंड देन गो ऑन, कि आपने उनको माफ़ कर दिया और आपने उनको एक और मौका दिया है कि वो केयरफुल होएं और स्टडी की तरफ पढ़ने में ध्यान लगाएं.
तो सबसे अप्रोप्रिएट इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ए फ्रॉबेल, प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म क्या होता है? प्रोग्रेसिविज्म होता है कि जो आपके डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस चेंज उसको फेवर करे, इस तरह की लर्निंग। तो प्रोग्रेसिविज्म में इस तरह की लर्निंग होती है जो इंडिविजुअलिटी, प्रोग्रेस और चेंज पे बिलीव करती है। उसको मेन ऑब्जेक्टिव उसमें ध्यान होता है कि इंडिविजुअलिटी की खास ध्यान रखा जाता है। और फंडामेंटल जो ग्रोथ्स होंगी इंडिविजुअलिटी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, वो जो है ये सब उसकी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी सारे काम होंगे, चाइल्ड की एबिलिटी, इंटरेस्ट और इसके अकॉर्डिंग, तो उसको प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। और डेवी ने दी थी प्रैग्मेटिज्म। तो डेवी ने मतलब सपोर्टर थे डेवी इसके प्रैग्मेटिज्म के। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू दैट रिजेक्टेड द डुअलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, कि वो डुअलिस्टिक जो एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स जो होती है, जो मैटर की मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जो विश्वास करते हैं, उसको उसने जो है रिजेक्ट करता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रैग्मेटिज्म। और इसमें जो है फेवर करता है ये नेचुरलिस्टिक अप्रोच को, जिसमें जो है हम क्या करते हैं कि नॉलेज जो है उसको हम ऐसे देखते हैं कि वो जो है एक्टिव अडेप्टेशन है ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की विद द एनवायरनमेंट। उससे वो लर्न कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव अडेप्टेशन ऑफ हिज एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म लर्न करता है या ह्यूमन जो है लर्न करते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म इसको सपोर्ट करता है। थर्ड में जो है गसाल्टवाद की बात हुई है। गसाल्टवाद के जो जो यहाँ पे जो मैचिंग होनी चाहिए, इसमें कोहलर होना चाहिए, स्किनर इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसमें कोहलर इसका होना चाहिए था। तो इसमें ये कहते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ती है लर्निंग में जब भी करना हो, नहीं तो एट्रीब्यूट्स जो हम निकालेंगे या जो कंक्लूजन निकालेंगे वो रॉन्ग कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं अगर हम एक पार्ट को ऑब्जर्व करके कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं तो एपरसेप्शन लास्ट में कहा गया है, हार्वर्ड इसके सपोर्टर हैं। तो कॉन्शियस इसको कंप्रीहेंशन की बात करते हैं कि परसेप्शन करते हैं, बट वो परसेप्शन बनाते किसके थ्रू हैं? कॉन्शियसली कंप्रीहेंशन के थ्रू उसको परसेप्शन को बनाया जाता है। तो ये डी इसका सब जो है, डी भी सही होगा। सी इसमें गलत है, इसमें कोलर को हम रिलेट कर सकते हैं बट स्किनर को नहीं कर सकते। तो ये सब जो है स्किनर जो है इसके सपोर्टर नहीं है गेस्टाल्टिज्म के, गेस्टाल्टवाद के जो सपोर्टर हैं वो कोलर हैं। तो सी इसमें सबसे अप्रोप्रिएट होगा। 87 में क्या है? 87 में है कि 7th क्वेश्चन है सेट का, हाउ कैन स्टूडेंट इन अ क्लास बी मेड अटेंटिव? ऑप्शंस है बाय स्पीकिंग लाउडली इन द क्लास, बाय प्रिपेयरिंग योर लेक्चर प्रॉपर्ली, सी बाय क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट, डी बाय वेयरिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा कि क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी आप वो करोगे, क्रिएट करोगे, तो आप उनको ज़्यादा अटेंटिव बना सकते हो। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग अमंग द गिवन? ऑप्शन ए इज directing student in development of experiences, B is making monthly reports and maintaining records, C is making assignment and checking worksheets, D all of the above। तो इसमें जो A है दैट इज डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस से वो खुद सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगा। ठीक है, तो वो सब जो है A के थ्रू जो है ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है और ज़्यादा जल्दी मतलब उसको गेन करता है, लर्निंग काफ़ी अच्छे से होती है और लॉन्गर लर्निंग होती है, लंबे टाइम के लिए लर्निंग होती है। तो डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन इज, इफ द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस एंड चार्ज यू विद द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज, हाउ वुड यू बिहेव विद हिम? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यू वुड टेक रिवेंज बाय गिविंग फिजिकल एंड agony to him, you would neglect him, you would take a tough stand against the changes, you would keep yourself alert and make his efforts unfruitful। तो कहते हैं कि आपके जो प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूशन के वो सेटिस्फाइड नहीं है आपकी परफॉर्मेंस से और चार्ज करते हैं आपको एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज़ के लिए, कि आपको आप पे आरोप लगाते हैं आप नेग्लिजेंस कर रहे हो ड्यूटीज़ की। तो आप उनके साथ कैसे बिहेव करोगे? आप उनके साथ फिजिकली या फिर अग्नि उनकी ईर्ष्या की भावना रखोगे, या फिर आप जो है उनको नेग्लेक्ट करोगे, या फिर आप टफ स्टैंड लोगे उनके चेंजेस के अगेंस्ट की जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे। और डी है कि आप जो है अलर्ट रहेंगे और उनके एफर्ट को नाकाम करेंगे जब भी वो बोलेंगे कुछ कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप अच्छा करके दिखाओगे। तो इसमें डी सबसे अप्रोप्रिएट है कि जब भी आप जो है यू कीप योर सेल्फ अलर्ट एंड मेक हिज एफर्ट्स अनफ्रूटफुल। लास्ट जो है, सो द 10th क्वेश्चन इज, a teacher can get important place in society if he, options है,
परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एक्टिव मेंबर द पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, कि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसका वो एक्टिव मेंबर बन जाए, या फिर सोशल इज ए स्कॉलर एंड इन पावर हो, उसके पास पावर और स्कॉलर हो, वो पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन सोशल एक्टिविटीज़, कि सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे एक्टिवली, या फिर परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑनेस्टली, कि परफॉर्म करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑनेस्टली। तो इंपॉर्टेंट प्लेस तभी मिलेगा टीचर को सोसाइटी में जब वो परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑनेस्टली। तो डी ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो।